سے ڈرنے
ڈرنے والوں سب آؤ سنو اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ پریز۔ آئے اپنی آنکھوں کو خدا کی حضور میں بند کر لیں، اپنے سروں کو اس کے حضوری میں جھکا لیں، کیونکہ فقط وہی سجدے کے لائق خدا ہے۔ وہ ہمارا رب الافواج ہے، وہ اپنی شفقت سے باز نہیں رکھتا۔ وہ میری جان کے لیے، میں سب کو بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ اس نے ہمارے لیے بہت بڑی کفارہ دے دیا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ہمارے لیے بھیج دیا۔ اپنے منہ سے اس کے بیٹے کا اقرار کرنا شروع کریں، اس کے لہو کا اقرار کرنا شروع کریں، اس کا صلیب پہ دیے جانے کا اقرار کرنا شروع کریں، کیونکہ وہی کفارہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے۔ پریز ہاللویہ۔ قدوس قدوس رب الافواج زمین اور آسمان کے خالق و مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں، ہم تیرے چرنوں میں آ چکے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہمارا بادشاہ ہے۔ اور میں آج اقرار کروں گی کہ تو نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے خداوند۔ ہاں خداوند، تو نے میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں، اس اٹرنل لائف کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ دنیا کے پاس ایسی امید نہیں ہے، لیکن ہمارے رب الافواج کے وسیلہ سے ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی کی امید ہے۔ آئے اپنے مسیح کو سجدہ کرنا شروع کریں۔ ہاں خدا، میں تجھے سجدہ کرتی ہوں، کیونکہ تو ہی فقط سجدے کے لائق خدا ہے خداوند۔ ہاں میرا زندہ خدا ہے جس کی قبر آج بھی خالی ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس کی قبر خالی ہے۔ اس کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ ہاللویہ۔ ہماری زندگی کے اندر تیری گواہی اسی طرح قائم رہے خداوند، کیونکہ تو نے میری زندگی کے لیے کیا 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 ہے، میری زبان اس کا بیان کرتی ہے۔ ہاں خداوند تیرے شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس میٹنگ کے لیے جو تیرے گھر میں ہو رہی ہے۔ ہاں خداوند دعا یا شفا یا میٹنگ آج خداوند تیری حضوری میں ہم کر رہے ہیں۔ ہاں خداوند یہ بخور کی مانند ہماری پرستش تیری حضوری میں بخور کی مانند پہنچے، اور تو اس کی بینی خوشبو لے خداوند، اور ہمیں برکت دے خداوند۔ ہمارا گیت گانا فقط تیرے نام کو جلا دینے کا باعث ہو یسوع ناصری۔ ہاں تو نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ تیری حضوری میں پرستش کرے خداوند۔ آج ہماری زبانیں تیری حضوری میں کھل جائے، اور ہم دل اور جان سے معمور ہو کر تیری حضوری میں پرستش کرے خداوند۔ تیرے بندہ کے لیے کلام جو تو نے اس کے منہ میں رکھا ہے ہم اپنے لیے مانگ لیتے ہیں خداوند، میرے لیے، میری زندگی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے خاوند کے لیے، میرے گھر والے کے لیے باعث برکت ٹھہرے وہ کلام خداوند۔ تیرا شکر ہو، تیرے نام کی تعریف ہو، یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ زبور نویس کہتا ہے، بہت پیاری آج مجھے یہ آیت لگی ہے جس کو میں نے پڑھا ہے، اے خدا سے ڈرنے والوں سب آؤ اور سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ آئے خدا ان کے حضور میں زبور 92 گائیں گے، اور اس کی صفت بیان کر کے ہم بتائیں گے کہ اس نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ پریز۔ تیریاں صفتاں دی گاؤنیا گیت کرنا شکر خدا، تیریاں صفتاں دی گاؤنیا گیت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے چنگی گیت کرنا شکر خدا، میرے رب آئے چنگی گیت کرنا شکر خدا، بڑھتے
तड़तड़ाएंगे साथ लागे, तड़तड़ाएंगे साथ लागे, भीतर बत्ती कुछ रंग बजागे, भीतर बत्ती कुछ रंग बजागे, करिए याद सदाए करना शुक्र खुदा मेरे रब आए चकी बीते करना शुक्र खुदा। अपने कम्मा तो या रबा, अपने कम्मा तो या रबा, मैं जो तू कुछ हाल कीता, मैं जो तू कुछ हाल कीता, करिए याद सदाए करना शुक्र खुदा मेरे रब आए चकी बीते करना शुक्र खुदा। तेरे हाथ दिया कारा गया, तेरे हाथ दिया कारा गया, मेरी खुशी दे साथ जावा, मेरी खुशी दे साथ जावा, करिए याद सदाए करना शुक्र खुदा मेरे रब आए चंगी बीते करना शुक्र खुदा। तेरा सिरका दिगाओ गया बीते करना शुक्र खुदा मेरे रब आए चंगी बीते करना शुक्र खुदा। क्या आप सब खुश हैं? हालेलुया। आवाज नहीं आई? हालेलुया। खुदा की हजूरी में गीत नंबर 80 गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। जैसे कैसा भी गम हो, कैसी भी मुसीबत हमारी जिंदगियों में हो, लेकिन जब मसीह हमारे पास आ जाता है तो हमारी जिंदगी में खुशी भर जाती है। आए खुदा उनके हजूरी में खुश हो जाएं और मिलकर इस गीत को गाएंगे। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इब्तिदा इब्तिदा तू है मेरी वफा, इब्तिदा इब्तिदा
सवारन मेरे रोगा दा उदार हुए जेड़े खून दे कतरे बहते ने। आए उसकी शान के लिए हम गीत गाएंगे। तेरी शान जलाली नाज़रिया तेरू धन धन लोग कहते ने ओ बागा मक्ता वाले ने जेड़े घर विच तेरे रहते ने। तेरी शान जलाली नाज़रिया तेरू धन धन लोग कहते तेरी शान जलाली नाज़रिया तेरू धन धन लोग कहते ओ बागा मक्ता वाले तेरे घर विच तेरे रहते ओ बागा मक्ता वाले तेरे घर विच तेरे रहते। जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता जिन्ना प्यार तेरे नाल कीता हंस हंस जाम शहादत पीता हंस हंस जाम शहादत पीता हंस हंस जाम शहादत पीता। किसे मुश्किल कोलों डरते हर टुकड़ा जानते सहते किसे मुश्किल कोलों डरते हर टुकड़ा जानते सहते। तेरी शान जलाली नाज़रिया तेरू धन धन लोग कहते तू ना भर गज मेरी हामी तू ना भर गज मेरी हामी मर जाना मैं बीच गुलामी मर जाना मैं बीच गुलामी मर जाना मैं बीच गुलामी। मैं तेरा कर्म ने खुल सकता मैं जादियो मेरे रहते मैं तेरा कर्म ने खुल सकता मैं जादियो मेरे रहते। तेरी शान जलाली नाज़रिया तेरू धन धन लोग कहते सूली चढ़ गयो जग दे कार सूली चढ़ गयो जग दे कार बिगड़े बिगड़े काज सवार बिगड़े बिगड़े काज सवार बिगड़े बिगड़े काज सवार। मेरी रोगा दा उदार हुए जेड़े खून दे कतरे बहते मेरे रोगा दा उदार हुए जेड़े खून दे कतरे बहते। तेरी शान जलाली नाज़रिया तेरू धन धन लोग कहते ओ बागा मक्ता वाले जेड़े घर विच तेरे रहते जेड़े घर विच तेरे रहते जेड़े घर विच तेरे रहते। आए एक दफा फिर हम अपनी आंखों को खुदा की हुजूरी में बंद करेंगे अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुका लेंगे उससे मांगेंगे उसका शुक्र अदा करेंगे कि खुदावन तूने पूरे जग के लिए पूरी दुनिया के लिए कुल कायनात के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये तेरा रहम था ये तेरी शफकत थी जिसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। इस बड़े कफारे को जिसकी वजह से आज मैं आज़ाद हूँ तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मैं इस वक्त सिस्टर सलमा शाम को सामने बुलाऊंगी कि वो आए और खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी को पेश करें कि हमारे लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और उसके लहू के वसीला से आज हम आज़ाद हैं। प्रेज़ हालेलुया। नाम की तारीफ करते हैं
मेहरबान खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन पाक खुदावन ने अपनी हजूरी में झुकने का फजल दिया, ये वक्त ने हमारे लिए मुकर्रर किया ताकि हम पाक खुदावन तेरी प्रस्तिश और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरी पाक हजूरी में बढ़े। अजीम खुदावन इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ जिसकी रहमत से मेरे पाक खुदा जो पाक खुदावन तूने हमें प्रस्तिश करने का फजल बख्शा है, अपनी हजूरी में झुकने का फजल दिया है, तूने हमें दुनिया से अलग किया है मेरे पाक खुदा ताकि हम तेरी हमद करें और तेरी सताइश में बढ़ते चले जाएं। ऐ मेरे जिंदा बुजुर्ग खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए मेरे पाक खुदा जो तूने अपने खादमों को पाक खुदावंद अपने लोगों के लिए ये पाक खुदावंद मौका बख्शा ताकि वो दिल खोल कर तेरी प्रस्तिश करे, तेरी पाक हजूरी में बढ़े। तू कितना प्यारा और कितना अजीम बाप है मेरे पाक खुदा। यकीनन यहाँ पर तेरा तख्त लग चुका है और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुल चुका है मेरे अजीम खुदा। एक एक जिंदगी पर तेरी खास बरकत चाहती हूँ, तेरे जलाल को मांग लेती हूँ। आज का दिन पाक खुदा जो तूने हमें हमद के लिए दिया है, जो तूने हमें प्रस्तिश के लिए दिया है मेरे पाक खुदा, जो पाक खुदा तूने अपने कलाम को हमारे पाक खुदावंद हम पर पाक खुदा अपने भेदों को खोलने के लिए ये वक्त ने जो हमें दे दिया है मेरे पाक खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं क्योंकि तू तारीफ और तमजीद के लायक है मेरे पाक खुदा। तू बुजुर्गी और हमद के लायक है, सजदा तुझे वाजिब है मेरे पाक खुदा। दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसको हम सजदा करें, एक फकत यीशु मसीह ऐसा नाम है जिसकी हम आगे झुकते और पाक खुदा जिसको हम सजदा कर सकते हैं। ऐ मेरे अजीम खुदा तू बेहद शुक्रगुजारी के लायक है मेरे पाक खुदा। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ मेरे अजीम खुदा। तूने पाक खुदा मुझे प्रस्तिश करने का फजल दिया, तूने दुआएं उठाने की कुव्वत बख्शी मेरे पाक खुदा। हमें रोज रोज रूह में बढ़ने की ताकत दे और पाक खुदा तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ जो खूबसूरत कलाम को हमारे तक पहुंचा रहा है मेरे पाक खुदा। तो अपने बंदा को और ज्यादा बरकत दे और ज्यादा कसरत इस्तेमाल कर मेरे पाक खुदा। आज का हमारा प्रस्तिश करना, आज का हमारा दुआएं उठाना, आज का हमारा कलाम सुनना तुझे पसंद आए मेरे पाक खुदा। और अजीम खुदा जब तेरे कलाम और ये पाक खुदा दुआएं तेरे हजूर में पहुंचे तो मेरे अजीम खुदा तेरे पाक खुदा तू बहूर की मानत की धीमी धीमी खुशबू लेकर अपने लोगों को कसरत से बरकत दे मेरे पाक खुदा। तू अपने जलाल को जाहिर कर मेरे अजीम खुदा। आज इतनी जाने तेरे हजूर में झुक रही हैं और पाक खुदा जो आने का इरादा रखी है मेरे पाक खुदा, तू सबको बड़ी बरकत दे और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने का बारी फजल बख्शना मेरे अजीम खुदा। आज एक एक जिंदगी के बंधनों को तोड़ना मेरे अजीम खुदा। तू दिलों और खुदों को जांचने वाला बाप है। आए मेरे पाक खुदा जो पाक खुदा तेरे हजूरी में झुके और दुआएं उठाए तो मेरे पाक खुदा तेरे यीशु नाम से वो बरकत पाए और कसरत से बरकत पाए मेरे अजीम खुदा। मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करती हूँ इस वक्त के लिए मेरे पाक खुदा जो तूने हमें बख्श दिया। मेरे जिंदा बुजुर्ग खुदा तू मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से मांग के और पा लेती हूँ, आमीन। खुदा उनकी हजूरी में हम गीत गाएंगे। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना हो मैनू बस कहता है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा खुदा मेरे
लियो दी शान विच गावांगे हालेलुया होशाना दे नारे असीं लावांगे बादशाह तेरा लियो दी शान विच गावांगे हालेलुया होशाना दे नारे असीं लावांगे और अपने आप को आज के कलाम के लिए खुदाम की हुजूरी में तैयार करना शुरू करें। हाँ, उससे कहे ऐ खुदावन आज तुम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए, मेरे बीवी के लिए खुदावन आज कलाम कर खुदावन जो मेरी जिंदगी के लिए खुदावन चिराग है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। Praise. तेरी प्रस्तिश और हम दो सना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना की मसा से तू इस जगह को जो भी तू चाहे इस जगह
के लिए और खुदावन के बंदा के लिए हम सिस्टर यार इलियास के साथ में खुदावन की इज्जत में दुआ करेंगे। जमायत बैठ जाए। कुदस कुदस रब्बुल फाइज़ ज़मीन की खालिक और मालिक, तू नहायत रहीम है, करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ते में गनी है। तो अल्फा और ओमेगा है, इब्तिदा और इंतहा है। तू ही हमारा जोर और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। प्रभु, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तेरा तख्त अब्दुल आबाद है रब्बुल फाज, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और यकीनन प्रभु, जब हम तेरे सामने अपने होंठों को खोलते हैं तो तू अपने कान हमारी दुआओं पर लगा लेता है, हमारी वर्शिप पर लगा लेता है प्रभु। और जो अभी हमने शुक्रगुजारी का बखूर तेरे सामने जलाया है, यीशु नासरी तो इसकी खुशबू को ले और इसे कबूल कर। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत इल्तिजा करती हूँ रब्बुल फाज, खुदावंदों के खुदा, अभी जबकि खुदावंद हम कलाम सुनने को है, अपने बंदा को शोला की मानद इस्तेमाल कर। खुदावंद, खुदावंदों के खुदा, तो अपने कलाम को उनके मुंह से जाहिर कर खुदावंद रब्बुल फाज, और हमें तौफीक दे कि हम उसको समझने वाले बने और अपने दिलों में उतारने वाले बने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने। यीशु नासरी, मैं तुझसे मिन्नत इल्तिजा करती हूँ, तू मेरी दुआ को सुन और जो आपने जो कुछ मांगा उसी इसके कुदूस कादिर और बरकत नाम में पा लिया। आमीन। खुदावन के कलाम को और खुदावन के बंदा पास्टर इमरान मकबूल को तालियों के साथ करके बोलें। खुदावन की सलामती हम सब पर हो। ये शाम बड़ी ख़ास शाम है जब हम दुआ के लिए इकट्ठे होते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा है? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों, उनके बीच मैं हूँ। और ये इसलिए ख़ास शाम है। और यकीनन जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हो, वहाँ पर हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में हीलिंग होती है, हमारी ज़िंदगियों में शिफा होती है, निजात होती है, खुशी आती है और बरकत आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा ईमान है कि जब आज के दिन जब हम जमा होते हैं जुमेरात के दिन में, हमारी ज़िंदगी में खुदा बड़े बड़े काम करना चाहता है और दिखाना चाहता है। आमीन। करना चाहता है और दिखाना चाहता है। और मुबारक है वो लोग जो खुदावंद के बड़े कामों को अपनी ज़िंदगियों के अंदर तजर्बा करते हैं। आमीन। याद रखिए कि जो कुछ हम खुदावंद से हासिल करना चाहते हैं, और संडे को मैं बता रहा था कि तब तक हम खुदावंद के निजात को, छुटकारे को, शिफा को, सलामती को, बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं ले सकते जब तक हम डिमेंशन ऑफ डिलीवरेंस की तरफ रुख नहीं करते हैं, जब छुटकारे की सिमत में मूव नहीं करते हैं, तब तक हमारी ज़िंदगियों के अंदर हीलिंग नहीं होती है। और आज थोड़ी देर के लिए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और उसके बाद हम दुआओं को उठाएंगे और खुदावंद के हुजूर में उसकी शिफा को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस करेंगे। आमीन। किस तौर पर हमारी ज़िंदगियों के अंदर शिफा का काम होता है और किस तौर पर हम खुदावंद की शिफा को अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। एक वाक़या है जो बाइबल मुक़द्दस में से उसका जिक्र करना चाहता हूँ। मौजज़ा है जो यीशु मसीह ने किया है, और इस बना पर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद की शिफा को और उसके मौजज़े को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं। मेरे साथ निकालिए मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 27वीं आयत। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर।
जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावन। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अब ये भी खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप इस चैप्टर में पढ़ें तो पीछे यक के बाद दीगर मौजज़ात की एक लिस्ट है। इसमें यीशु मसीह एक 12 बरस से जिसको खून जारी था औरत, उसको शिफा दी। और फिर यायर की बेटी को खुदावंद ने जिंदा किया। और 27वीं आयत हमने पढ़ी है और उसमें लिखा, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे क्या पुकार रहे थे? ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। क्या पुकार रहे थे? हम पर रहम कर। अब खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी बात को सुन लिया। कितना उसके घर में पहुंचने का रास्ता था, टाइम था, ये तो बयान नहीं है। देखिए यायर की घराने से जब वो निकला, उस घर से निकला, तो लिखा है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। तो गए इसका मतलब ये है वो पुकारते चले गए। क्राइस्ट सुन रहा है कि कोई उसे पुकार रहा है, लेकिन तो भी खुदावंद ने उसके उन दोनों के आवाज़ के ऊपर कान नहीं धरा है। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो घर में पहुंचा तो 2 अंधे उसके पास आए। लिहाजा आप ये देख सकते हैं कि 2 अंधे क्या कर रहे हैं? बराबर उसका पीछा कर रहे हैं, बराबर पीछा कर रहे हैं और बराबर वो क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं। आमीन। 2 चीजें हैं 2 चीजें आपको यहां पर नजर आएंगी। पहली चीज कि वो पुकार रहे हैं और दूसरी चीज वो क्या कर रहे हैं? वो पीछा कर रहे हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम बड़े पुकारते हैं, बड़ी आवाज बुलंद करते हैं खुदावंद के हुजूर में, और खुदावंद से कहते हैं यीशु नासरी, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद हम पर रहम कर। हम अंधे हैं, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम मुसीबतज़दा हैं, हम गरीब हैं, हम नंगे हैं, हम तंग दस्त हैं और हम जब मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं, हम पुकारते रहते हैं। और ये हरगिज़ मतलब नहीं है, अगर इस मामले में देखा जाए तो यीशु मसीह को बराबर वो पुकार रहे हैं, ऐ इब्ने दाऊद। और आप जानते हैं जब बाइबल मुकद्दस में इब्ने दाऊद की बात की जा रही है तो गोया वो एज ए किंग उसको जो है वो बयान कर रहे हैं। और मत्ती ने यीशु मसीह को एज ए किंग के तौर पर, बादशाह के तौर पर जो है वो यीशु मसीह को बयान किया है। और जब इब्ने दाऊद की बात की जाती है कि दाऊद के बेटा, और जब दाऊद के बेटे की बात की जाती है, इब्ने दाऊद की बात की जाती है, तो मसाया किंग की बात की जाती है, मसीह की बात की जाती है, निजात दहिंदा की बात की जाती है, और उस किंग की बात की जाती है जिसका वादा खुदा ने जो है वो बनी इसराइल के साथ किया है। लिहाजा 2 अंधे जिनकी आंखें नहीं हैं वो मसीह को मुसलसल पुकार रहे हैं कि हम पर क्या किया जाए? रहम जो है वो किया जाए। लिहाजा इसका मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने खुदावंद के रहम को हासिल करना है तो क्या करने की जरूरत है? बोलिए, पुकारने की जरूरत है। हालेलुया। और आज शाम हम पुकारेंगे उसके हुजूर में। आज शाम जिस मकसद के लिए हम उसको पुकारेंगे, खुदावंद हमारा खुदा क्या करेगा? वो हमें फराहम करेगा। आमीन। और वो हम पर रहम करेगा और हम पर तरस खाएगा। और दूसरी बात, बाज़ दफा हम ये सोचते हैं कि अब मैं पुकार रहा हूं और क्या ये मेरे लिए काफी है? इस मौजज़े में आप ये देखिए कि उन्होंने पुकारा, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसका पीछा भी किया। आमीन। उन्होंने उसको क्या किया? पुकारा भी, और फिर उसका क्या किया है? पीछा किया। और कहां तक पीछा किया है? बाइबल फरमाती है कि वहां तक पीछा किया जहां पर यीशु मसीह रहता था। आमीन। अजीज बहन भाइयों, अगर हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद की शिफा को
अपनी जिंदगियों में देखना चाहते हैं, उसके रहम को, उसके तरस को, उसकी बरकत को, उसकी कुदरत को, उसकी निजात, उसके छुटकारे को अपनी जिंदगियों के अंदर जो है हकीकी मानों में लेना चाहते हैं, तो पुकारिए भी और उसका पीछा भी कीजिए। हालेलुया। और उसके घर तक पहुंच जाइए। बाद इस पर कहते हैं कि कोई जो है बाहर से ही हमारा काम हो जाए, दूर ही से हमारा काम हो जाए और हम पर रहम कर दिया जाए। उसके पास आने की जरूरत नहीं है, उसके नजदीक आने की जरूरत नहीं है। खुदावंद चाहता है कि जो है उसके पास आया जाए, उसके करीब आया जाए, उसके नजदीक आया जाए। हालेलुया। और खुदावंद हमारी जिंदगियों के अंदर ये कुछ चाहता है कि हम उससे पुकारे भी और उसके हुजूर जो है वो पहुंचे भी। और आज हम उसके कदमों या उसको पुकारेंगे भी और हम उसके कदमों में भी आए हैं और वो भी मौजूद है। आमीन। वो यहाँ पर उतरा हुआ है, वो हमारी जो है इस जगह के ऊपर अपने कौल के मुताबिक मौजूद है, जिसमें उसने यह फरमा दिया खुद ही कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों उनके बीच मैं हूँ। जब वो घर में पहुंचा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, तो वो अंधे उसके पास आए और पता नहीं टाइल्स के पास कितने लोग थे। उसके शागिर्द तो यकीनन उसके शागिर्द उसके साथ थे, साथ जो है वो काफ़ी जो है उसके साथ भीड़ होती है, काफ़ी उसके साथ लोग होते हैं। और आप ये देखिए कि उनकी आवाज़ जो है वो कितनी बुलंद थी और उन्होंने भीड़ को जो है वो चीरते हुए जो डायरेक्ट क्राइस्ट के सामने खड़े हो गए हैं। आपको उसके तख्त के सामने, उसकी हुजूरी में, उसके बिल्कुल सामने खड़े होने की ज़रूरत है। अगर वाकई ही हम उसके रहम को, उसके तरस को, उसकी निजात को, उसकी शिफा को, उसकी सलामती को और उसकी जो है कुदरत को, उसकी हुजूरी को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करना चाहते हैं। आमीन। क्राइस्ट ने उससे पूछा कि तुम मेरे पास आए हो। वो आपको बताएगा कि तुम जो इतना पुकार रहे हो, तुम जो मेरा इतना पीछा कर रहे हो, मुझे पुकार रहे हो और मेरा पीछा कर रहे हो, तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ? तुमको ये एतकाद है कि मैं कर सकता। तीसरी बात आ जाती है, हमारा एतकाद, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा जो है यकीन। हम पुकारते हैं, हम पीछा करते हैं। और फिर तीसरी बात, क्या हम एतकाद रखते हैं? जब तक हम अपनी जिंदगियों के अंदर एतकाद नहीं रखते हैं ताकि उसको रिसीव कर सके। याद रखिए कि अगर हमारे पुकार, हमारा पीछा करना ये बेकार हो सकता है अगर हमारे पास रिसीव करने की जो वो ताकत नहीं है, किसी चीज़ को हासिल करने की जो वो पावर नहीं है, या किसी चीज़ के लिए हम एतकाद नहीं रख सकते, हम उसका यकीन नहीं कर सकते, हम ईमान नहीं रख सकते हैं। और अगर हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो है बहुत पुकारने वाले हैं, किसी बात के लिए आप बराबर पुकार रहे हैं और बराबर उसके हुजूर में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बराबर जो है उसके पीछे कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम आए तो हम जो है वो शक व शबात का शिकार हो जाएं, हम जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर डाउट्स पैदा हो जाएं, तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर पुकारना और पीछा करना वो कोई मायने नहीं रखता है। और अगर हकीकत में हम खुदावंद के हुजूर में उसकी जो है निजात और शिफा का एक्सपीरियंस, उसका तजर्बा करना चाहते हैं, तो फिर क्या करना होगा? बोलिए, पुकारना होगा। फिर क्या करना होगा? उसके पीछे, उसके जो है उसके करीब, उसके नज़दीक आना होगा। और वो जो है पूछेगा आपसे, क्या तुझे एतकाद है कि मैं कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा उन्होंने? हाँ खुदावंद। अजीज बहन भाइयों, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है उसकी बरकत को लेना चाहते हैं, उसकी शिफा को, उसकी निजात को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं, तो फिर क्या कहना होगा? यस लॉर्ड, यू कैन डू। तू कर सकता है, तो मेरी जिंदगी के अंदर या निजात का, शिफा का काम कर सकता है। और जिनकी जिंदगियों में हो, नो लॉर्ड, ठीक है, अगर तू कर सकता है तो कर। तेरे शागिर्द, एक जगह के ऊपर बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? यस, जो है वो एक नौजवान था जिसको मिर्गी पड़ती थी और शागिर्द उसको निकालना चाह रहे थे और वो निकाल ना पाए। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा है कि जब यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ जब वो नीचे उतरा तो वो उसके पास वो शख्स, वो बाप उसके पास आया।
तेरे शागिर्दों के पास लेकर आए थे वो तो नहीं निकाल सके। अगर तू कर सकता है तो कर। यीशु मसीह ने उससे क्या पूछा? कर सकता? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ये कर सकता, ये क्राइस्ट का जो है ये है वो एक्सप्रेशन है। कर सकता, तू मुझसे कहता है कि कर सकता, तू ले सकता है? ये बता। ये आपके लिए चैलेंज है आज कि क्या तू ले सकता है निजात? क्या तू ले सकता है शिफा? क्या तू तरस को, मेरे तरस को ले सकता है? मेरे रहम को कबूल करने की तेरे पास इतनी जो है वो ताकत है, इतना तेरे पास ईमान है, इतना तेरे पास एतकाद है, इतने तेरे पास यकीन है। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा क्या तुझे एतकाद है? तुम्हें एतकाद है कि मैं कर सकता हूं? तो उन्होंने क्या कहा? हाँ खुदावंद। और उस शख्स ने जिसके बेटे को जो है वो बदरूप पटक देती थी, उसने कहा तू मेरे एतकाद का क्या कर? इलाज कर। अजीज भाइयों, रिसीविंग जो है वो एतकाद के ऊपर है, जो है रिसीविंग जो है वो ईमान के ऊपर है। और जो है आप अगर अपनी जिंदगी के अंदर उसकी निजात और शिफा का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अभी इसी वक्त, तो फिर आपको क्या कहना होगा? यस माय लॉर्ड। क्या कहना होगा? बोलिए, यस माय लॉर्ड, आई एम रेडी। हालेलुया। मैं तैयार हूं, मैं आया हूं, मैं पुकार रहा हूं अभी इसी वक्त। तो मुझे क्या कर जो है वो दे। तो आपको मैं हकीकत बताऊं, 100 जो है % आपको गारंटी देता हूं, अभी इसी वक्त जो कुछ आपने अपने दिल में ठहराया है और उसके लिए आपने पुकारा है, उसके लिए आप उसके कदमों में आए हैं, इंस्टेंटली आपकी जिंदगी के अंदर वो होना शुरू हो जाएगा। आमीन। क्यों बाइबल मुकद्दस में जो है यीशु मसीह ने फिर बाइबल मुकद्दस में ताबूत से उनकी आंखें छूकर कहा तुम्हारे एतकाद के माफिक तुम्हारे लिए हो। फिर वो आप पर उसका हाथ बढ़ता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा जब उन्होंने कहा हाँ खुदावन, ताबूत ने उनकी आंखें छूकर कहा। कब कहा? जब उन्होंने कहा हाँ खुदावन, तब खुदावन का हाथ बढ़ा कि उनकी आंखों को छुए। क्यों? खुदावन का हाथ जो है वो अपना आगे नहीं बढ़ रहा है इसलिए कि हाँ नहीं है, इसलिए कि यस नहीं है, इसलिए कि उसके लिए जो है तैयार नहीं है। उसके लिए हम शायद दुआ कर रहे हों, शायद जो है पुकार रहे हों, शायद जो है वो जो है आ भी गए हों, लेकिन जो है हाँ के साथ जब लेने की बात आओ तो हम डाउट का शिकार हो जाते हैं। यीशु मसीह ने हमारी निजात और शिफा के लिए जो है वो उसे कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह ने हमारी निजात और शिफा के लिए अपने यह कीमती लहू को बहा दिया है। इसके अलावा जो है आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसने अपनी जान शरीर पर कुर्बान कर दी है और अपने आप को जो है वो कोड़ों के हवाले कर दिया है। ये इसलिए हुआ है ताकि जो है निजात और शिफा की कन्फर्मेशन हो जाए कि मैंने तुम्हारे लिए जो है क्या की है, वो जो कोड़े खाए हैं, मैंने तुम्हारे लिए मार खाई है, इसलिए कि किसी तरह का डाउट ना रह जाए। अगर कोई शख्स फिर भी डाउट के साथ जो है वो आए और कहे कि भी मुझे पता नहीं जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं पुकार तो रहा हूं, मैं आ तो गया हूं और मैं जो ऊंची आवाज के साथ भी बोल रहा हूं, मैं शायद धीमी आवाज के साथ भी बोल रहा हूं, तो मुझे मिलता है कि नहीं मिलता? जो ही आप हाँ कहेंगे तो ही उसका हाथ जो है बढ़ जाएगा। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा तुम्हारे एतकाद के माफिक तुम्हारे लिए हो। तो इसका मतलब है उसका हाथ कैसे बढ़ता है? उसका हाथ हाँ के साथ बढ़ता है। यह है दूसरे क्रंथ उसके पहले बाब के अंदर जो है ये एक जो है तरीका है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके सारे वादे क्या हैं? बोलिए आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा यह दूसरा क्रंथ उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत में, बल्कि 19वीं आयत में, क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सुलवानस और तीमुथियुस ने तुम में की, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं। हालेलुया। इसलिए उसके जरिए से आमीन भी हुई ताकि हमारे वसीले से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। उसके सारे वादे किसके साथ है? बोलिए हाँ के साथ हैं। तो जो शख्स हाँ करता है, जो शख्स जो है यस कहता है, जो शख्स कहता है लॉर्ड आई एम रेडी, मैं दुआ के लिए रेडी हूं, मैं एकदम खुदा तेरे हुजूर आने के लिए रेडी हूं, और एकदम खुदा मैं इसको रिसीव करने के लिए जो वो रेडी हूं। और जो ही आप कहते हैं यस लॉर्ड कम,
जो है अपना हाथ बढ़ा, मैं तैयार हूं, और वो आपके हाथ जो है आपकी आंखों की तरफ बढ़ाएगा और हमारी आंखें जो है वो हील होंगी। वो अपने हाथ जो है ये कानों की तरफ बढ़ाएगा, हमारे कान हील होंगे और हमारे बदन की तरफ बढ़ाएगा, और हम क्या पाएंगे? शिफा पाएंगे, हम निजात पाएंगे, हम रहाई पाएंगे। अब इसकी कुव्वतें, उसकी तस्वीरें, उसकी नापाक कुव्वतें जो जिंदगियों से जो है वो मुंह मोड़ लेंगी और हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा की बरकत का चश्मा फूट जाएगा। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और उनकी आंखें खुल गईं। क्यों खुली? क्योंकि उसने अपना हाथ बढ़ाया है। हाथ बढ़ाने के लिए आपको कुछ करना होगा। हाथ बढ़ाने के लिए अगर उसके हाथ को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस करना चाहते हैं, आपको क्या करना होगा? बोलिए, पुकारना होगा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर। हालेलुया। और जब हम ये पुकारेंगे और फिर दूसरी बात, उसके पीछे चलेंगे और उसके घर तक पहुंच जाएंगे जहां वो है, एग्जैक्टली उसके तक के सामने पहुंच जाएंगे। आओ हम उस फजल के तक के सामने दलेरी के साथ जाएं ताकि हम पर क्या हो? रहम हो, और उस फजल को हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। अगर हम अपनी जिंदगियों के अंदर उसके रहम को हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसके फजल के तक के सामने जाना पड़ेगा। और इन अंधों ने जो है वो ऐसा ही किया है, वो एग्जैक्टली उसके सामने खड़े हो गए और क्राइस्ट को ये पूछना पड़ा कि क्या तुम ये एतकाद रखते हो कि मैं कर सकता हूं? उसने कहा कि हाँ खुदावन, आमीन। आज शाम हम अपनी जिंदगियों के अंदर क्या चाहते हैं? ये क्वेश्चन है, हम अपनी जिंदगी में अभी क्या लेना चाहते हैं? आज ही हमें ये हासिल होगा, आज ही हमें हासिल होगा। आमीन। हमारी आंख के ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अच्छी बात, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है? ठीक है, हाँ के साथ हाँ मिला दीजिए। आमीन। इब्लीस के साथ ना के साथ, उसके साथ ना कर दीजिए और उसके साथ हाँ हाँ हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मैंने बारहा चाहा, ऐ इस्राएल, मैंने क्या किया? बारहा चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के तले जो है वो छिपा लेती है, मैंने भी चाहा कि तुमको भी जो है ले लूं, लेकिन क्या हुआ? तुमने ना चाहा। कहकर नो लॉर्ड, नो लॉर्ड, नो लॉर्ड, नो लॉर्ड। जो है नबियों की जो है खुदावंद ने भरमार लगा दी इनके लिए, और ताकि ये हाँ कर दें, ताकि ये यस कर दें। उसने शरीयत दे दी कि ये हाँ कर दे, उसने सहीफे दे दिए ताकि हाँ कर दे, इल्हाम उनको मिल गया ताकि ये हाँ कर दें, उनके पास बेटा आ गया हाँ कर दे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? नो, नो और नो। और खुदावंद ने कहा कि मैंने जब बारहा चाहा कि तुझे अपने परों के नीचे ले लो। और आज भी उसका कलाम हमें फरमाता है, और आज भी जो है उसके खालिद चीख चीख कर ये कहते हैं, और यही बात पौलुस रसूल ने कही है, मैंने सिलवानुस ने और तीमुथियुस ने जो है तुम्हारे दरमियान में जो है वो मनादी की है, यीशु मसीह के नाम से ये मनादी की है। हमारे होंठों पर, हमारी जबान पर ना ना नहीं बल्कि हाँ 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 थी। हालेलुया। और जो है उस बात को कबूल कर देता है, उनकी जिंदगियों के अंदर निजात और शिफा का काम होना शुरू हो जाता है। क्या हम अपनी जिंदगियों के अंदर जो है खुदा के बड़े बड़े वादों को और उसके जो है जोर को, उसकी कुदरत, उसकी निजात और शिफा का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो फिर क्या कीजिए? यस, यस लॉर्ड, आमीन। क्या कहना होगा हमें? यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। गर्दन कशी नहीं, सर नहीं हिलाना, बल्कि क्या करना है? हाँ, यस लॉर्ड, कम लॉर्ड, मेरे घर में आ। ठीक है, मेरे घर में आ। खुदावंद क्या चाहता है? आना चाहता है। कई जगहों के ऊपर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब आप गज़ल गज़लात की किताबें पढ़ें, लिखा है कि मैं सारी रात तेरा दरवाज़ा खटखटाता रहा, और वो क्या है? अंदर जो है वो सोई हुई है, और जब वो खटखटा के वापस चला गया, क्योंकि अंदर से ना 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 की आवाज़ आती रही और किसी ने उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला। लेकिन जिन्होंने जो है कहा यस लॉर्ड कम, उनके साथ वो क्या करता है? वो उनके साथ खाना खाता है और वो उनके साथ, हालेलुया। और ये
ये प्रिविलेज उन सब को हासिल होती है जो यीशु मसीह के लिए हाँ करते हैं, आमीन। और जो उनके लिए ना कहते हैं उनके लिए जो है वो दुख और मुसीबत और बीमारी है। और इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर ना को जो है वो पैदा करना चाहता है। यीशु मसीह हमारी जिंदगी के अंदर हाँ देखना चाहता है ताकि अपनी बरकत को हमारी जिंदगी के अंदर वो कायम करे। आज बहुत सारी जिंदगियां दुख के अंदर हैं, तकलीफ के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, बदरूहों के अंदर जकड़े हुए हैं। रीजन क्या है? और उनकी जो है बड़ी रीजन क्या है? नो लॉर्ड, नो लॉर्ड। उनसे कहें कि आओ खुदावन के कदमों में आओ। नो पास्टर, जो है उनको कहा जाए कि जो है आप खुदावन को कबूल करो, पानी का तौबा करो और पानी का बपतिस्मा लो। नो नो, वी डोंट नीड, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें जो है इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खुदा के हर कलाम के ऊपर, खुदा की हर बात के ऊपर क्या है? गर्दनकशी है। हर बात के ऊपर क्या है? वो नो नो और नो हैं। लेकिन उन सब के लिए जो है बरकत, खुशी, इत्मीनान, निजात, शिफा, रास्ती, हालेलुया। किन के लिए? जो क्या कहते हैं? हाँ 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 हाँ, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तुम्हारे इत्काद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आज कौन ये बात सुनना चाहता है? कौन उसका हाथ देखना चाहता है कि वो बढ़े और वो शिफा पाए, निजात पाए? हम थोड़ी देर के लिए उसके हुजूर में पुकारेंगे। थोड़ी देर के लिए हमारे पास जो है बड़ा टाइम है। हम उसको पुकारेंगे, हम उसके हुजूर में उसके पास आएंगे और जो है जो दुआ कराना चाहेगा मैं उसको मौका दूंगा कि वो सामने आए ताकि हम उनकी दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि जिस तौर पर खुदा का रूह आपको उभारता है उस तौर पर खुदा उनके हुजूर में पुकारना शुरू करें। अपने हाथों को उसकी तरफ बुलंद करें, अपने घुटनों को उसके सामने टेक दें, अपनी आवाज़ को उसके सामने जो है वो बुलंद करें, अपना गला उसके सामने खोल दें। हालेलुया। खुदावन हमारे लिए काम करना चाहता है। हम अपनी दरखास्तों को उसके हुजूर में पेश करें, अपनी मुनाजातों को उसके हुजूर में पेश करें। थोड़ी देर के लिए उसके सामने आ जाएं, थोड़ी देर के लिए उसके सामने पुकारना शुरू करें। वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है, वो आपकी पुकार को सुनना चाहता है। पुकार पुकार, मैं सुन लूंगा। मांग, हालेलुया, मांग। वर्शिप जीसस क्राइस्ट। आइए आइए खुदावन से मांगना शुरू करें, खुदावन के हुजूर में पुकारना शुरू करें। हालेलुया। उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, क्या इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। कौन उसके रहम का मतमन्ने हैं? कौन ख्वाहिश रखता है कि खुदावन यीशु मसीह उसकी जिंदगी के अंदर रहम करे? वो अपना आसमान मेरी जिंदगी में खोल दे, मेरी जिंदगी के अंदर बरकत के दरवाजे खोल दे, मेरी जिंदगी में निजात के दरवाजे खोल दे। ज़कई कहता है हाँ खुदावन मेरे घर में आ। यीशु मसीह उस घर के अंदर आता है और उस घर के अंदर आकर ये ऐलान करता है कि आज इस घर में निजात आई है। आइए हाँ कर दीजिए उसके हुजूर में, उसके कलाम के लिए, उसकी बात के आज यकीन कर लीजिए। वो एतकाद रखिए अपनी बरकत का, अपनी शिफा का, अपनी निजात का, अपने छुटकारे का। और इसी लम्हे आप अपनी जिंदगी के अंदर उसके जोर को, उसकी कुव्वत को एक्सपीरियंस करना शुरू करें। क्या आपने कभी भी उसकी कुदरत का, उसकी कुव्वत का, उसकी निजात का एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आज शाम कीजिए। हालेलुया। खुदा का कलाम आपको जब वो दावत देता है कि आप उसके कलाम को कबूल करें, आप मसीह की बात को कबूल करें, अपना कान धरे उसकी बात के ऊपर। आपकी हालत कैसी भी क्यों नहीं है, आप कितने भी वर्ष क्यों नहीं है, आपकी हालत कैसी भी बुरी क्यों नहीं है, आप जो है बिल्कुल डेड पोजीशन के ऊपर क्यों नहीं आगे। अगर जहां डेड पोजीशन है तो वो पुकार के कहेगा लाजर बाहर निकल आ, तो वो उसकी सुनेगा। हालेलुया। खुदा जिंदगी देने में, खुदा निजात देने में, खुदा बहाल करने में यह वो कादर खुदा है। हालेलुया।
ओ वर्शिप यू जीसस क्राइस्ट। ये मौका है आपका, ये है लम्हा है आपका कि आप हाँ करें। आपका ये वक्त है कि आप हाँ करें, आपका टाइम है कि आप हाँ करें। खुदावन खुदा अपना हाथ बढ़ाने के लिए रेडी है। उसका कुदरत वाला बाजू या वो जाहिर होने को है, उसका जलाली बाजू आपके ऊपर जाहिर होने वाला है। वही बाजू जिसके जरिए से उसने यह बुलंद बाजू के जरिए से, अपने जोरे बाजू के जरिए से बनी इसराइल को मिस्र में से निकाल लिया, वो अपना बाजू या वो बढ़ाना चाहता है। क्योंकि उस वक्त उन्होंने हाँ की थी कि हम खुदावन का पीछा करेंगे, हम खुदावन के पीछे चलेंगे, हम उसके कलाम के ऊपर आमीन कहते हैं। अजीज बहनों भाइयों, वो अपने जोरावर बाजू को आपकी जिंदगी के लिए बढ़ाना चाहता है, वो आपके खानदान के लिए बढ़ाना चाहता है। वो आप बीमारी में हैं, परेशानी के अंदर हैं, गुर्बत के अंदर हैं, तकलीफ के हालत के अंदर हैं, कैसी भी सिचुएशन क्यों नहीं है, आप जकड़े हुए हैं, आप बंधनों और जीवों का शिकार है, अपनी जो है वो जनरेशन कर्ज का शिकार है। अभी इसी वक्त आपकी आंख के ऊपर जो है आपकी रिडेम्पशन आपको मिल जाएगी, आपको जो है रहाई मिलेगी, क्योंकि वो अपना कुदरत वाला बाजू हम पर जाहिर करने को है। हालेलुया हालेलुया। We worship you Jesus Christ, we worship you, worship you Jesus Christ। जो कोई उसके हजूर में पुकारता है, जो कोई उसके हजूर में ललकारता है, खुदावन उसकी ललकार को, उसके कराहने को, उसके दुख को, उसकी बीमारी को, उसकी परेशानी को, उसके सारी प्रॉब्लम को, उसकी सारी लानत को जिसके नीचे है, उसमें से उसे निकालने की कुदरत और कुव्वत रखता है। वो हमारा खुदा है, वो हमारा निजात दहिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान में जुम्बिश कर रहा है और वो तैयार है कि हमें छुए, वो तैयार है कि हमारे यह तन मन को जब वो छू जाए, हमारे स्पिरिट को छू जाए और हमें हील करे, हमें शिफायाब करे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु सूची नहीं करता, worship you Jesus, यीशु कुव्वत नहीं worship you Jesus, करता, worship you Lord। हालेलुया। यीशु सूची नहीं करता, हालेलुया। यीशु कुव्वत नहीं करता, और दिल भी तैयार चाहिए। Yes Lord। और दिल भी तैयार चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए। सब कहें तेरे रूह का मज़ा चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज तेरी शिफा चाहिए। Yes Lord। आज तेरी शिफा चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए, तेरे रूह का मज़ा चाहिए। दिल के दागे भी धुल जाएंगे, आज बदन भी खुल जाएंगे, दिल के दागे भी धुल जाएंगे, आज बदन भी खुल जाएंगे। वो लहू जो वहाँ चाहिए, वो लहू जो वहाँ चाहिए, कह दीजिए तेरी तुमका मज़ा चाहिए। तेरे
भी आए हाथ रखेंगे
دعا کے لیے جو ہاسپٹل میں ہے اس بچی کے لیے شفا کی دعا کریں گے. اپنے آنکھوں کو بند کریں اور اپنے خداوند کا شکر ادا کریں. ہاں خداوند خدا، میں دل کی گہرائیوں سے آج تیری حضوری میں تیری شکر گزاری کر رہی ہوں، کیونکہ تو وہ خدا ہے جو قوت اور زور کا منبع ہے. طاقت تجھ سے بہتی ہے. ہر ایک جو تیرے پاس آتا ہے تو اس کے ایمان کو دیکھتا ہے. آج جس طرح وہ دو اندھے تیرے پاس آئے اور ان کے ایمان کو تو نے تولا، وہ تیرے پیچھے 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 چلے آئے. اسی ایمان اور اسی اعتماد کی دوڑ میں ہمیں یہ دوڑ درپیش ہے. ہم خداوند خدا ایمان میں تیرے پیچھے 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 چلتے جائیں گے. اور پھر اے خداوند، جب ہم تیری حضوری میں پہنچ جائیں، جب ہم خداوند آسمان کے تخت کے اوپر تیری حضوری میں ہم پہنچ جائیں، تو وہاں پر تیری آواز ہمیں سنائی دے. تو اعتقاد رکھتا ہے تو میرے پیچھے پیچھے آیا. سلامت چلی جا. ہاللویا ہاللویا. خداوند، اس دنیا میں ہم سبھی بے حد بیماری کی حالت میں ہیں. اس دنیا میں جسمانی بیماریاں بھی ہیں، دنیاوی بیماریاں بھی ہیں، اور ہر طرح سے
के अंदर कुव्वत और जोर है, वो जिंदगी देने वाला है, कोड़ियों को बचाने वाला है, अंधों को आंखें देने वाला, गुंगों को जुबान देने वाला, हर एक को जिंदगी देने वाला खुदा है। ए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए, तेरे खादम के लिए। ए खुदावन हम फिर से ईमान की हालत में और ज्यादा पुख्ता हुए हैं, और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, और ज्यादा तेरे करीब हैं, और ज्यादा खुदा तेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और ज्यादा खुदा हम खुशी की हालत में हैं, क्योंकि हमारे खुदा के पास सब कुछ है। हाँ करनी चाहिए, हाँ ही हाँ है, ना नहीं है। तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ हो। आज जितने तेरी हजूरी में झुके हैं सब तंदुरुस्त होकर जाएंगे, सब तसल्ली पाकर जाएंगे, सब खुशी शादमानी में घर को लौटेंगे, क्योंकि खुदावंद तूने हमसे कलाम किया है और तू बोला है हम शिफा पाए। तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। तेरे खादिम के लिए एक दफा फिर आसमान की बरकते, जमीन की बरकते, खुदा तू बख्श दे। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु के नाम में, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। आइए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन, आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ होगी। आमीन। God bless you.